Okay, let me start sharing the screen. Okay, so I'll just give the brief of what all we have covered as a part of our session, and then we'll continue. So we have started with the Scrum. Okay, so I told you what is a Scrum. So Scrum is a life cycle that will help you to make the software, right? So you are having first methodology waterfall, and then we have learned the agile. In agile, we are having a Scrum, and that Scrum will help you to create the software. So after that, we have learned about the Scrum life cycle, how the project is going to be initiated, how the project will be built into the Scrum life cycle, how whenever we are taking the requirement from the client. Example, if we want to develop any software, अगर मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है, I want to develop Axis Bank का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन. Okay, so that I will make with help of our process, and that process is called the Scrum. So first of all, I'll have the documentation in the product backlog, and then I'll just put all the item in the product backlog. From product backlog, item will move into the sprint back. Yeah, hi Subhas. Hi Subhas. Okay. So we'll move our item from product backlog. From product backlog, item will move into the sprint backlog. Okay. And from a sprint backlog, our item will be executed, and then we will give to the client. So we have understood about the Scrum rule, how the Scrum will look like, what is the role of Scrum Master, we have understood, what is the Product Owner role, we have understood, how the Scrum team will look like, what is the role of Scrum Master in detail, we have understood, what is the role of Product Owner, we have understood, what is the Product Backlog, ये सारी चीजें हमने अभी तक कंप्लीट की है. Correct. Today we need to start. Okay, one more point. We have understood in detail about the sprint. कि sprint क्या होती है. यहाँ तक हमने पढ़ा है. Today we want to start our new topic. That is what are the agile ceremonies or what are the scrum ceremonies. Before I start, I want to have some understanding from you guys. Okay. Nancy, can you please tell me what is the product backlog? सर प्रोडक्ट बैकलॉग जिसमें थ्रू जीरा जब हम रिक्वायरमेंट्स नोट करते हैं उसी को प्रोडक्ट बैकलॉग कहते हैं. जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स है उसको हम प्रोडक्ट बैकलॉग में ऐड करते हैं. Okay. If you want to define the product backlog in one line, what will be your answer, Nancy? सर प्रोडक्ट बैकलॉग में Go to your screenshots. जस्ट सेकंड सर. The product backlog is an evolving prioritized queue of a business and technical functionality that needs to be developed into a system. Okay. अब आप अपनी भाषा में बताइए. सर प्रोडक्ट बैकलॉग एक तरह से लिस्ट होती है जिसमें हम हमारे जो कस्टमर या सॉरी क्लाइंट की जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती है या फंक्शंस जिनको हमको डेवलप करना है वो हम इसमें नोट करते हैं Very good. सिस्टम बस में. यही है नैन्सी. प्रोडक्ट बैकलॉग इज द लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट गिवन बाय द क्लाइंट. क्लाइंट हमें कोई रिक्वायरमेंट देता है, हम उसको कहाँ लिखते हैं? प्रोडक्ट बैकलॉग में. अंडरस्टूड नैन्सी? यस सर. ओके. व्हाट इज द स्प्रिंट, वेंकट? आई नो गाइस, आई एम ओवर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू. कल पढ़ाया था, आज पूछ रहा हूँ, बट मुझे पूछना पड़ेगा. आई डोंट हैव एनी ऑप्शन. वेंकट बताइए सर, व्हाट इज स्प्रिंट? कल की क्लास का ही है ये. वेंकट, अनम्यूट योरसेल्फ. हाँ अश्विनी. यस, व्हाट इज स्प्रिंट? As sprint is the one iterative that team is going to work on that. Very good, Venkat. Very good, Venkat. Very good. So, sprint is a iterative duration or span of work where we are going to complete our requirement, whatever requirement we decide. Okay. Subhas, what is sprint backlog? चलो भैया स्प्रिंट बैकलॉग. Yes.
स्प्रिंट बैकलॉग सर, अ, जब प्रोडक्ट बैकलॉग से जब हम लोग स्प्रिंट बनाते हैं तो वो स्प्रिंट बैकलॉग में जाता है, देन द स्प्रिंट स्टार्ट। Very nice, very nice. So your requirement will be moving from the product backlog to sprint backlog in the another way. In one sprint, whatever requirement we are going to create, हम एक स्प्रिंट में जो जो रिक्वायरमेंट बनाने वाले हैं उसको हम बोलते हैं स्प्रिंट बैकलॉग। बहुत जबरदस्त, वेरी नाइस गाइस, आप सभी ने बराबर आंसर दिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस टॉपिक। दिस इज वेरी फ्रेश टॉपिक, ओके, एंड दिस टॉपिक इज अवर अजाइल सेरेमनीज बोल दो, या इसको आप बोलो स्प्रिंट सेरेमनीज या स्क्रम सेरेमनीज। ओके, दिस इज द डैम श्योर क्वेश्चन जो आपके इंटरव्यू में पूछा ही जाएगा। जैसे मैंने आपको कल ही बताया था, जो भी क्वेश्चन में आपको बोलता हूँ इंटरव्यू में पूछा जाएगा वो आपको अपने नोट्स में नोट डाउन करना है कि दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू कम इन द इंटरव्यू। तो जब वो इंटरव्यू पूछा जाए तो यू नीड टू आंसर विद वेरी गुड कॉन्फिडेंट। ओके, नाउ स्प्रिंट प्लानिंग, एज आई टोल्ड यू गाइस, लेट मी अगेन रिपीट इन वन लाइन। अगर आप लोग भूल भी गए हो तो आपको अजाइल थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूँ, इन 1 minute ओनली यू विल बी एबल टू गेट इट। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इन अजाइल वी आर फॉलोइंग द स्क्रम। ओके, scrum is a ceremony, or you can say scrum is a framework that will help you to make your software। एक तरीका है जिससे आप इस सॉफ्टवेयर को बनाते हो। अब whenever you are working in the agile, you are working on the small task। This is your entire project। What is your project? Your project is Axis Bank मोबाइल बैंकिंग। आपको एक एक्सिस बैंक के लिए मोबाइल बैंकिंग बनाना है। हाउ यू आर वर्किंग इन स्क्रम? एग्जाम्पल, जब आप एक्सिस बैंक के लिए मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन बना रहे हो तो आपके पास बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स आई। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आई आपके पास? लॉगिन पेज, साइन अप ऑप्शन, बैलेंस इंक्वायरी, फंड ट्रांसफर, लाइक लॉगिन पेज, साइन अप ऑप्शन, बैलेंस इंक्वायरी, फंड ट्रांसफर, फिक्स डिपॉजिट। ऐसे करते करते आपके 16 to 17 रिक्वायरमेंट आ गई। ये 16 to 17 रिक्वायरमेंट what you will do, you will put into the product backlog। आप एक प्रोडक्ट बैकलॉग में जाकर के डाल दोगे। All your requirement will be listed into the product backlog। Now from product backlog your item will be moved into the sprint। आप एक स्प्रिंट बनाओगे। What the agile says, agile क्या बोलता है, स्क्रम क्या बोलता है? स्क्रम इतना बोलता है कि इट डिवाइड योर इंटायर बिग सेट ऑफ टास्क। एक बहुत बड़े टास्क को वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। इट डिवाइड योर इंटायर बिग वर्क इनटू स्मॉल स्मॉल इटरेशन, एंड दीज इटरेशन विल बी कॉल्ड योर स्प्रिंट। करेक्ट? स्प्रिंट क्या होता है? स्प्रिंट इज अ ड्यूरेशन ऑन विच यू आर गोइंग टू कंप्लीट सम फंक्शनैलिटी। यहाँ 16 रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे आप 2 फंक्शनैलिटी बना दोगे। कौन कौन सी? लॉगिन पेज, साइन अप ऑप्शन। इन स्प्रिंट नंबर, दिस इज योर स्प्रिंट नंबर 1 एग्जाम्पल, दिस इज योर स्प्रिंट नंबर 2। इन स्प्रिंट नंबर 2 यू आर गोइंग टू अगेन 2 more फंक्शनैलिटीज। कौन कौन सी? बैलेंस इंक्वायरी इन मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन एंड फंड ट्रांसफर in mobile banking application. Then sprint 3, you are going to create another 2 requirement. What 2 requirement you can have? You can have UPI and you can have e-statement. Another 2 requirement you are making in the Axis Bank mobile banking application. But currently, what is your focus? आपका फोकस कहाँ पे है? केवल एक स्प्रिंट पे, एक छोटे से टास्क पे। यही अजाइल चाहता है। अजाइल का प्रोसेस ही बोलता है आपको पूरा प्रोजेक्ट क्या बनाना है उससे आप ध्यान मत दो। व्हाट टास्क इज इन योर हैंड फॉर दैट स्प्रिंट, आपकी और उस पर ध्यान दो। तो अजाइल डिवाइड योर एंटायर सेट ऑफ वर्क इनटू स्मॉल स्मॉल स्प्रिंट, और इस छोटे छोटे स्प्रिंट में आप फंक्शनैलिटी बना के क्लाइंट को देते जाते हो। आपने एक स्प्रिंट बनाया, आपने क्लाइंट के पास गए, क्लाइंट हमने आपकी लॉगिन पेज और साइन अप ऑप्शन बना लिया है, प्लीज डू द टेस्टिंग। So what my meaning of this entire sentence जो मैं आपको 3 दिन से बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है, अजाइल में, लेट मी रिपीट, हम जब वाटरफॉल में काम करते हैं, अब अभी बहुत ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ से आज के टॉपिक का शुरुआत होगा। जब हम वाटरफॉल में काम करते हैं तो हमारा जो ध्यान रहता है, जो फोकस रहता है इन इंटायर प्रोजेक्ट, इन ऑल रिक्वायरमेंट। अगर 16 रिक्वायरमेंट है तो 16 रिक्वायरमेंट पे फोकस रहता है। बट व्हेन आई एम वर्किंग इन स्क्रम, जब मैं स्क्रम में काम करता हूँ, या व्हेन आई एम वर्किंग इन द अजाइल,
माई फोकस विल बी ओनली इन द स्प्रिंट। मैं खेल स्प्रिंट पे फोकस करता हूँ। स्प्रिंट क्या है? एक बहुत बड़े टास्क है, ये 16 वीक का प्रोजेक्ट है। इसको छोटे छोटे स्प्रिंट में डिवाइड कर दिया। स्प्रिंट नंबर 1, स्प्रिंट नंबर 2, स्प्रिंट नंबर 3, स्प्रिंट नंबर 4। और हर एक स्प्रिंट पे मैं कुछ कुछ फंक्शनैलिटी डेवलप करके दे दूंगा क्लाइंट को। क्लाइंट भी खुश, हम भी खुश। हमें भी थोड़ा सा काम करके क्लाइंट को देना है, क्लाइंट को भी लगेगा हाँ हमारा प्रोग्रेस हो रहा है। अब हम इसको ट्रैक कैसे करते हैं? इसके लिए होता है वी आर हैविंग द सेरेमनीज। स्प्रिंट पे जब काम करते हो तो कैसे काम करते हो, हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। व्हाट आर द स्क्रम सेरेमनीज? स्क्रम सेरेमनीज क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई घुमा घुमा के नहीं। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया था इंटरव्यू में, जो घुमा करके पूछेगा, सिनेरियो बना देगा, इसमें नहीं बना सकता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, जो मैं आपसे मॉक में ही पूछूंगा अपने। मैं आज बता रहा हूँ कि मॉक में क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। ओके, सो इन द इंटरव्यू यू आर गोइंग टू गेट दिस क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या रहेगा? व्हाट आर द स्क्रम सेरेमनीज? या मैं ये पूछ सकता हूँ व्हाट आर द अजाइल सेरेमनीज? योर आंसर विल बी देयर आर 4 अजाइल सेरेमनीज। फर्स्ट, स्प्रिंट प्लानिंग, डेली स्टैंड अप, स्प्रिंट रिव्यू एंड स्प्रिंट रिट्रोस्पेक्टिव। आप ये 4 पॉइंट बोलोगे और आप चुप हो जाओगे इंटरव्यूअर के सामने। लेट हिम आस्क द क्वेश्चन। कई बार एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू टू लर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। जब भी हमें कोई इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, सम टाइम जो क्वेश्चन हमें याद रहता है या बहुत अच्छे से आता है, हम भावुक हो जाते हैं। एग्जाम्पल, दिस क्वेश्चन इज कमिंग एज व्हाट आर द स्क्रम सेरेमनीज। हम बहुत खुश हो गए कि हाँ हमें ये क्वेश्चन तो आ गया। अब हम बताए सर देयर आर 4 अजाइल सेरेमनीज, स्प्रिंट प्लानिंग, डेली स्टैंड अप, स्प्रिंट रिव्यू, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। सर इन स्प्रिंट प्लानिंग वी आर गोइंग टू डू दिस सेट ऑफ एक्टिविटी। Sir, in daily stand-up, we are going to this set of activity. In sprint review, we are going to do this set of activity. In sprint retrospective, we are going to do this set of activity. मतलब क्वेश्चन एक था, आपने इसको 5 क्वेश्चन बना दिए। कैसे 5? पहला क्वेश्चन था व्हाट आर द स्क्रम सेरेमनीज, ये तो ठीक है। 4 क्वेश्चन और क्या बनाए? यू आर ऑल्सो एक्सप्लेनिंग व्हाट आर स्प्रिंट प्लानिंग, व्हाट इज डेली स्टैंड अप, व्हाट इज स्प्रिंट रिव्यू, व्हाट इज स्प्रिंट रिट्रोस्पेक्टिव। नो, आपको वेट करना है। अगर आपको आंसर आता भी है, क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द अजाइल सेरेमनीज? सर देयर आर 4 अजाइल सेरेमनीज, स्प्रिंट प्लानिंग, डेली स्टैंड अप, स्प्रिंट रिव्यू, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। और आपको चुप हो जाना है। लेट हिम आस्क द क्वेश्चन। उसको इन चारों में से आपसे क्या पूछ रहे हैं वो उसको पूछने दो ना। ठीक है, बिहेव लाइक अ मिच्योर, वी ऑल आर प्रोफेशनल गाइज। ठीक है, सो हमें वैसे ही बिहेव भी करना है। तो खुश होना है कि हाँ आंसर है पहले से, क्वेश्चन पहले से पता है हमको इंटरव्यूअर जो पूछने वाला है। बट वी विल वेट फॉर द हिज नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटे छोटे टुकड़ों में आसान भाषा में अच्छे से आंसर देना है आपको। चलिए, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अवर 4 अजाइल सेरेमनीज इन टुडेज क्लास। फर्स्ट इज योर स्प्रिंट प्लानिंग। ओके, मैं आपको बताता हूँ स्प्रिंट प्लानिंग लेमन लैंग्वेज में कि होता क्या है, फिर विल ट्राई टू लर्न फ्रॉम द पीपीटी में क्या लिखा हुआ है। इन स्प्रिंट प्लानिंग वी आर गोइंग टू डू द एक्टिविटी, कि हम जो स्प्रिंट लेने वाले हैं वो कौन सा स्प्रिंट लेने वाले हैं, उसमें क्या काम करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं। एग्जाम्पल, मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, आई एम हैविंग 16 रिक्वायरमेंट इन माई प्रोडक्ट बैकलॉग। व्हाट इज प्रोडक्ट बैकलॉग? प्रोडक्ट बैकलॉग जैसा नैन्सी ने बताया, इट इज द प्रायोरिटाइज लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट। ये कैसे दिखता है? जब जीरा की क्लास होगी तब मैं आपको दिखाऊंगा ये एक्चुअली दिखता कैसे है प्रैक्टिकल में। ओके, बिकॉज थ्योरी से काम नहीं होगा, इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा थ्योरी से। विल डू एवरीथिंग इन प्रैक्टिकल। तो आपका प्रोडक्ट बैकलॉग में यू आर हैविंग 16 रिक्वायरमेंट। अब आपको अपना स्प्रिंट स्टार्ट करना है। यू वांट टू स्टार्ट योर स्प्रिंट नंबर 1। स्प्रिंट नंबर 1 के लिए आप ये 4 चीज करते हो। स्प्रिंट प्लानिंग करते हो, डेली स्टैंड अप करते हो, स्प्रिंट रिव्यू करते हो, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव करते हो। प्लीज ट्राई टू गिव फोकस गाइस। यहाँ पे जो भी आप कर रहे हो ना, वो ओनली स्प्रिंट नंबर 1 के लिए कर रहे हो। यू आर नॉट, यू कैन से, यू आर नॉट वरी कि मेरा अगला स्प्रिंट क्या है या प्रोजेक्ट क्या है। नो, यू आर हैविंग फोकस ओनली ऑन द स्प्रिंट। इसीलिए आप इस वाले स्प्रिंट की प्लानिंग करते हो, इसी वाले स्प्रिंट के लिए डेली स्टैंड अप्स करते हो, स्प्रिंट रिव्यू करते हैं, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव करते हो आप। So the first activity in the Scrum ceremonies is the sprint planning. In the sprint planning, you are going to define what requirement you want to develop.
आप कौन सी रिक्वायरमेंट को डेवलप करने वाले हो, और दूसरा होता है हाउ यू वांट टू डेवलप, कैसे डेवलप करोगे। दो चीजें। तो एग्जांपल हम स्प्रिंट नंबर 1 में प्रोडक्ट बैकलॉग से दो रिक्वायरमेंट उठाते हैं। रिक्वायरमेंट को क्या बोलते हैं वेंकट? मैंने एक वर्ड बताया था। अश्विनी क्या था, क्या पूछ रहा था? रिक्वायरमेंट्स को अजाइल या स्क्रम में क्या बोलते हैं? बैकलॉग तो नहीं, प्रोडक्ट बैकलॉग है क्या? नहीं। हाँ, प्रोडक्ट बैकलॉग इज राइट, क्योंकि आपके रिक्वायरमेंट लिस्ट होते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग में ही। हाँ yes। ठीक है, उसके बाद एक और वर्ड बोला था मैंने। व्हाट आई टोल्ड यू? याद नहीं है। ओके, ये क्या हो गया? नैन्सी। सर यूजर स्टोरी। वेरी गुड नैन्सी। नैन्सी कितनी तालियां लोगे आप? एज मच एज आई कैन। वेरी गुड नैन्सी, बहुत अच्छा। बहुत वेरी रिएक्ट है, रिएक्ट गुम जाता है। ओके, वेरी गुड। आई वांट एवरीवन टू प्लीज क्लैप फॉर नैन्सी अगेन। वेंकट, सुभाष, सर्विस। वेंकट ने कर दिया क्लैप। सुभाष प्लीज क्लैप फॉर नैन्सी। अच्छा अश्विनी, ये रिक्वायरमेंट इवन डॉक्यूमेंटेशन सब चीज यूजर यूजर स्टोरीज के अंदर ही आता है। यस करेक्ट। ये कल आपने क्वेश्चन ही पूछा था वेंकट, यू आर द सेम क्वेश्चन राइट। एवरीथिंग विल बिकम एज अ पार्ट ऑफ योर यूजर स्टोरी। सब कुछ आपके कहाँ पे जाएगा? यूजर स्टोरी में जाके डॉक्यूमेंट हो जाएगा। व्हाट इज यूजर स्टोरी? यूजर स्टोरी इज योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसकी एक्टिविटी है यूजर स्टोरी की, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। इट इज वन ऑफ द एक्सरसाइज दैट वी विल डू गाइस। तो यूजर स्टोरी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, डोंट वरी। वो एक्सरसाइज मैंने कराई नहीं है अभी तक आपकी। एक बार स्क्रम सेरेमनीज हो जाएगा तो मैं यूजर स्टोरी कराऊंगा। तो वेंकट आपसे कोई भी सपने नहीं पूछेगा तब भी आप बता दोगे। इट इज वेरी वेरी इजी, वेरी इजी। ठीक है। ओके, वी गॉट द रिप्लाई फ्रॉम सर्वेश, वेंकट एंड अश्विनी। क्लैप फॉर नैन्सी, वेरी नाइस। सो यूजर स्टोरी एंड द प्रोडक्ट बैकलॉग आर द टू वेज टू डॉक्यूमेंट अवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, चलिए लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट द रिक्वायरमेंट वी नीड टू बिल्ड। तो मेरे पास दो रिक्वायरमेंट है, दो यूजर स्टोरी आई विल बिल्ड। वन इज द लॉगिन पेज एंड सेकेंड इज द sign up option. So these two requirement I'm going to build as a part of this project. अब कैसे बिल्ड करूंगा इसमें I'll take help from the technical person and that we will decide. But as a part of Scrum ceremonies, the first Scrum ceremonies is the sprint planning. In the sprint planning we need to decide कि क्या डेवलप करेंगे, कैसे डेवलप करेंगे, ये बातें होती हैं। चलिए let's try to understand the sprint planning. So sprint planning, Nancy, can you please read this? Nancy, if you're speaking, you're on mute. हेलो। हाँ नैन्सी बिल्कुल। सर एक्चुअली मुझे 2 मिनट का टाइम चाहिए था, कुछ इमरजेंसी है तो मुझे कॉल करना है नहीं नहीं, प्लीज प्लीज है आप ना? कॉल हाँ। करो, वेट करें हम लोग। नहीं नहीं, आप कंटिन्यू नहीं करो, नहीं, मैं वेट इसको करते हैं। रिकॉर्डिंग में। नहीं नहीं, वी विल वेट, यू कंप्लीट द कॉल, इट्स फाइन। हाँ सर। वी विल वेट। बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर नैन्सी टू कंप्लीट द कॉल, इट्स फाइन, इट्स अर्जेंट।
हेलो। या Nancy? सॉरी सर, सॉरी। You can continue. Everything हाँ is हाँ। fine, Nancy? हाँ, एवरीथिंग इज फाइन। चलिए. So, Nancy, please read this. Nancy, you want to read or today else to read? It's fine. Okay, no problem, Nancy. आप मत. I think some emergency is there. सुभाष. नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, मैंने सुना नहीं, सॉरी। मैं नहीं पढ़ नहीं. लेती हूँ। ठीक है. Okay, Nancy. Sprint planning meeting consists of two consecutive meetings. Team meets with product owner, management decide functionality to be built in next sprint. Team meeting to figure out how functionality is to be built into a product increment. Inputs to the meeting, product backlog, latest increment, capabilities, and past performance of the team. Okay. So first of all, in the sprint planning meeting, we need sprint planning में हम प्लान कर रहे हैं क्या डेवलप करना है हमको. तो इट कंसिस्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव मीटिंग. पहले में डिसाइड होता है टीम मीट विद द प्रोडक्ट ओनर मैनेजमेंट एंड यूजर टू डिसाइड व्हाट वी नीड टू बिल्ड इन द नेक्स्ट स्प्रिंट. हमें क्या बनाना है. ठीक है. दैट वी नीड टू डिसाइड. ओके. इन्वायरमेंट गाइस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग हम डिसाइड करते हैं क्या बनाना है. ओके. एंड सेकेंड कैसे बनाना है. मीन टीम विल डिसाइड व्हाट फंक्शनैलिटी नीड टू बी बिल्ड. हमें कौन सी फंक्शनैलिटी बनानी है एंड देन हाउ वी नीड टू बिल्ड दिस फंक्शनैलिटी. ओके. ये डिसाइड होता है स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग. क्या मतलब. एग्जांपल हमारा जो एक्सिस बैंक का प्रोजेक्ट हम लेके चल रहे थे वहां पे कौन सी रिक्वायरमेंट हम बनाने वाले थे. लॉगिन पेज एंड साइन अप ऑप्शन. तो ये दो रिक्वायरमेंट है मेरी. कैसे बनाएंगे एंड ऑल इसके लिए टेक्निकल टीम काम करती है और वो उस रिक्वायरमेंट को बना देती है. द इनपुट फॉर द मीटिंग विल बी. मतलब अगर आपको बनाना है स्प्रिंट प्लान करना है तो कहाँ से आप इनपुट लोगे. इनपुट विल बी फ्रॉम द प्रोडक्ट बैकलॉग. जो प्रोडक्ट बैकलॉग है वो आपका मेन सोर्स रहेगा क्योंकि प्रोडक्ट बैकलॉग से आपके आइटम मूव करते हैं इनटू योर स्प्रिंट बैकलॉग इन द लेटेस्ट इंक्रीमेंटल and capability the performance of the team. But mostly you are going to get items in the sprint from the product backlog only. तो आपका जो इनपुट रहेगा इस वाली मीटिंग के लिए प्रोडक्ट बैकलॉग ही रहता है. ओके. सो द स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग क्या होता है. चीज बहुत आसान है. इन द स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग वी नीड टू डिसाइड क्या बनाना है कैसे बनाना है और इसका इनपुट कहाँ से आएगा. इसका इनपुट विल कम फ्रॉम द प्रोडक्ट बैकलॉग. इन द स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग यही है. अंडरस्टूड गाइस. क्या होता है स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में. नैन्सी, सर्वेश, सुभाष, वेंकट. यस सर. सुभाष अंडरस्टूड. यस सर. सर्वेश, यस सर. नैन्सी, नैन्सी और नैन्सी Yes, बिजी sir. है. Yes, sir. Yes, sir. ओके. वेंकट. Yes, sir. ठीक है. ओके. सो इन वेंकट आपका यस इज नॉट गिविंग मी द कॉन्फिडेंस एंड आई एम एक्सप्लेनिंग फॉर यू वेंकट. In sprint planning meeting, we are going to do two activity. First, what we want to make, मतलब कौन से फीचर we are going to create a login पे sign up option, and then how we want to create. उसके लिए input कहाँ से आएगा. Understood वेंकट. Okay. वेंकट understood here. Yes, yes. एक्चुअली ना मेरे को ये स्टेप समझ में नहीं आ रहा. यूजर टू डिसाइड फंक्शनलिटी टू बी आप बिल्ड इन. पूछो आप पूछो आप पूछो आप पूछो. You should ask the question. जब तक आपको नहीं समझता है मैं इसीलिए तो नाम लेता हूँ वेंकट कि आप मुझे बोलो से नहीं समझा. मुझे जब तक आप बोलोगे वेंकट नहीं समझाना भरोसा रखो. बिलीव मी आई विल एक्सप्लेन एन नंबर ऑफ टाइम. ठीक है वेंकट. Okay. एंड Actually, हम लोग जो स्प्रिंट प्लानिंग करते हैं वो जी क्या प्रेजेंट स्प्रिंट में के लिए वो प्लानिंग करना पड़ता है क्या नेक्स्ट स्प्रिंट में. एक्चुअली इधर जो लाइन है ना. ये नेक्स्ट स्प्रिंट जो दिया हुआ है ना इसका मीनिंग आपको बाद में पता चलेगा. अभी के लिए आप समझ लो इसको करंट स्प्रिंट. Okay.
करंट स्प्रिंट मतलब एग्जाम्पल टुडे वेंकट, अश्विनी, सर्वेश, नैन्सी एंड सुभाष, वी मेट इन ऑफिस. ओके, हम लोग ऑफिस से मिले आज. And we open the Jira application. We are having one application called Jira. We open the Jira application and we, this is what we are doing, Venkat. We are doing the sprint planning meeting. Okay. We all went into one room. Okay. In room, we went and we open the application. Example, Nancy is my Scrum Master. ये प्रोडक्ट ओनर है, ठीक है. देन वी आर गोइंग टू डिसाइड कि ओके लेट्स डिस्कस कि विच रिक्वायरमेंट वी नीड टू टेक फ्रॉम द प्रोडक्ट बैकलॉग. कौन से रिक्वायरमेंट लेना है प्रोडक्ट बैकलॉग से. ओके. देन एग्जांपल, अश्विनी से प्रोडक्ट ओनर ही सेड लेट्स टेक द रिक्वायरमेंट लॉग इन पेज एंड साइन अप ऑप्शन. ये दो रिक्वायरमेंट लेते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी यही है. लेट्स टेक दिस टू रिक्वायरमेंट एंड दिस टू रिक्वायरमेंट विल कम इनटू योर स्प्रिंट. ओके. This is the sprint planning meeting. In a sprint planning meeting, we decide what all requirements we want to build as a part of the current sprint. So you got confused with the next word, just eliminate the next word. Okay? Because when the project is started, we are meeting first time and we are going to decide which sprint, what all requirement we want to take as a part of this sprint. और इन्हीं दो requirement को हम बोलते हैं sprint backlog. We are saying these two requirement as a sprint backlog. एक sprint में what all requirement we want to develop, we are calling it as a sprint backlog. So the sprint planning meeting, what we do, Venkat, we collect in one room, okay, and we take the item from the product backlog, which requirement we need to build. So this is the part of your sprint planning meeting, Venkat. Understood? Should I repeat, Venkat? Yes, okay, समझ गए. Repeat And ये प्रोसेस क्या ओनली स्प्रिंट प्लानिंग के लिए क्या नहीं. एक्चुअली इधर आपने और एक लिखा है ना डेली स्टैंड अप. Where daily stand up? इसका पहले का पेज. नहीं. So Venkat, let me remove everything. So there are 4 agile ceremonies. Okay. We will learn one by one. समझ One is our sprint planning. Second is our daily stand-up. Third is our sprint review. And fourth is our sprint retrospective. So we have learned only one now. ठीक है? Okay, समझ. Understood? So we have learned only one. Okay. Now we learn the second one, daily stand-up, and then sprint review, sprint retrospective and all. Okay? अभी sprint planning हमने पढ़ी. Sprint planning में we are going to define कि what all requirement we want to take and how we want to build this facility. इसका input आता है from the product backlog. Understood? Sprint planning. Yes, समझ चलिए. गए. Yes, The correct. next one is our daily stand-up meeting. इसी मीटिंग को हम बोलते हैं daily scrum meeting as well. Now, in this meeting, what is happening? In this meeting, this is a short meeting. This is very important meeting also. जैसा आपका daily calls होते हैं ना, या you are having meeting with the manager, okay? उसको scrum meeting बोलते हैं. So when I was working with HDFC, तो वहां पर जो सेल्स की कॉल होती थी, सेल्स की मीटिंग भी जो होती थी, उसको भी स्क्रम बोलते थे वो. So Scrum is the kind of meeting where you are going to meet together and you need to decide कि आप क्या क्या काम करने वाले हो. Okay. So in the daily Scrum meeting, it is a short 15 to 30 minutes of status meeting, which is facilitated by the Scrum Master. Okay. All team member will attend, and one activity that Scrum Master is going to ask the 3 questions from each attendees. स्क्रम मास्टर आपसे 3 क्वेश्चन पूछता है. सो इट इज सिंपल. डेली स्टैंड अप मीटिंग क्या होती है? इट इज अ मीटिंग वेयर यू ऑल विल कम टुगेदर. If this meeting can be happen online and offline. If it is online, it will be happen in the Teams. If it is on office, it will have face to face. One room will be booked. Okay.
तो इसमें स्क्रम मास्टर कौन होता है? स्क्रम मास्टर इज द पर्सन हु विल बी, एक रूल है सर्विस, ठीक है। अगर हम लोग वाटरफॉल में काम करते हैं तो आपके पास कौन कौन से टीम मेंबर होते हैं? आपके टीम मेंबर होते हैं बिजनेस एनालिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर, टेस्टर, डेवलपर, ठीक है। अब जब आप अजाइल में काम करते हो, दो नए लोग आपके पास आते हैं। एक होता है प्रोडक्ट ओनर, और प्रोडक्ट मैनेजर। नहीं, और एक स्क्रम मास्टर। लिखता हूं मैं, आप देखो। तो वंस यू विल वर्क इन वाटरफॉल, यू आर हैविंग प्रोजेक्ट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, डेवलपर, टेस्टर, ओके। सर्विस, ये चार लोग होते हैं मोस्टली जो काम करते हैं प्रोजेक्ट में। आपकी वाटरफॉल है, आपकी डेवलपमेंट टीम होती है ये, ठीक, डेव टीम बोलते हैं इसको। जब आप वाटर अजाइल में काम करते हो तो ये तो रहेंगे ही, प्रोजेक्ट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, डेवलपर, टेस्टर। इसके साथ दो लोग और आ जाते हैं, टू मोर पीपल विल कम। एक होता है प्रोडक्ट ओनर और एक होता है आपका स्क्रम मास्टर, ठीक है। हु इज स्क्रम मास्टर, ये क्वेश्चन था आपका। स्क्रम मास्टर इज द पर्सन, उसकी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं सर्विस। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ही विल ट्राई टू मेक श्योर ऑल द अजाइल सेरेमनीज, ऑल द स्क्रम सेरेमनीज, कि आपके आइटम प्रोडक्ट बैकलॉग में जाने चाहिए। यू शुड यूज द जीरा एप्लीकेशन, स्प्रिंट बैकलॉग बनना चाहिए, यूजर स्टोरी बनाओ, टेस्ट केसेस लिखो। मतलब यू शुड फॉलो द प्रोसेस ऑफ अजाइल। तो जो पर्सन अजाइल के प्रोसेस को फॉलो कराता है वो होता है स्क्रम मास्टर। ये उसका एक काम। दूसरा काम ये है, इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, अगर आपको डेवलपर आंसर नहीं दे रहा है या मैनेजमेंट से आपको चीज पता करनी है, देन he will help you to guide. So he is the mediator between the client and the management team. ओके। ठीक है, चलिए। तो ये आप, अच्छा, एक और काम अभी क्या आया स्क्रम मास्टर का, सर्विस, टू टेक दिस डेली मीटिंग, ओके। अनदर रोल ऑफ स्क्रम मास्टर, पहला रोल था अजाइल के जितने भी रूल्स होते हैं फॉलो करवाओ, दूसरों की हेल्प करो, और तीसरा डेली स्टैंड अप कॉल को लीड करो, ओके। इन द डेली स्टैंड अप कॉल विल बी लेड बाय द स्क्रम मास्टर। मतलब वो आएगा और आपसे तीन सवाल पूछेगा। क्या सवाल है आपके, मैं बताता हूं। पहला सवाल, व्हाट हैव यू कंप्लीटेड सिंस द लास्ट स्क्रम मीटिंग? आपने कल से लेकर के आज के बीच क्या काम किया? वॉट गॉट इन योर वे ऑफ कंप्लीटिंग दिस वर्क? जब आप काम कर रहे थे, हैव यू फेस एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस, हर्डल्स? एंड द थर्ड वन, व्हाट विल यू डू बिटवीन नाउ एंड द नेक्स्ट स्क्रम मीटिंग? आप आज और कल के बीच क्या करने वाले हो? These three set of question will be asked from the Scrum Master in daily Scrum meeting. Okay? सबसे पहले क्या होता है, डेली स्क्रम इज डेली मीटिंग जहाँ पे आपके सारे टीम मेंबर अटेंड करेंगे। इट इज द 15 to 20 minutes ऑफ मीटिंग। Three question will be asked by this meeting will be led by the Scrum Master, and he is going to ask the three question. First question, what have you completed since the last Scrum meeting? कल की मीटिंग और आज की मीटिंग के बीच आपने क्या किया? कल 28 तारीख थे, 29 तारीख है, आपने क्या किया है आज कल के लिए, क्या आज तक में? व्हाट गॉट इन योर वे ऑफ कंप्लीटिंग दिस टास्क? मैंने आपको टास्क प्रोवाइड किया था, उस टास्क को करने में आपको क्या चैलेंजेस आए, कुछ परेशानी हुई तो बताओ आप हमें। व्हाट विल यू डू, आप आज और कल के बीच क्या करोगे फ्रॉम नाउ एंड द नेक्स्ट स्क्रम मीटिंग? नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द डेली स्क्रम? द बेनिफिट ऑफ डेली स्क्रम, इट विल इंप्रूव द कम्युनिकेशन। आप क्या करते हैं, पर्टिकुलर मीटिंग में आते हैं, रोज लोगों से मिलते हैं, ओके। जब आप लोगों से मिलते हैं तो आपको कम्युनिकेशन बढ़ता है, ओके। इट विल ऑल्सो एलिमिनेट द अदर मीटिंग। इफ यू वांट टू हैव सम डिस्कशन विद योर डेवलपर, या आपको स्टेटस बताना है, देन यू आर हैविंग दिस मीटिंग। से आपके सारे स्टेक होल्डर आपको रोज मिल जाएंगे। आइडेंटिफाई एंड रिमूव इम्पेडिमेंट्स, अगर आपको कोई चैलेंजेस है, कोई परेशानी आ रही, डेवलपर जवाब नहीं दे रहा है, टेस्टर अच्छे से टेस्टिंग नहीं कर रहा है,
You want to have dependency on one task. किसी से कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है, he is not responding to you, he is busy. So you are having this meeting जहाँ पे आपने सारे challenges को दूर कर सकते हो. One more point and very important point, it improves the everyone level of project knowledge. जब आप एक प्रोजेक्ट में काम करते हो तो everybody is having different level of project understanding. But when you are coming as a part of daily stand-up, वहां पे आपको प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है. One point I want to highlight you from the survival perspective, right? क्या है वो पॉइंट? जब भी आप किसी भी कंपनी में एज अ बिजनेस एनालिस्ट की नौकरी आपकी लगती है, आपका सारा जीवन घूमेगा किसके अराउंड? आपके प्रोजेक्ट के अराउंड. प्रोसेस एंड ऑल जाने दो, वो सब आपसे हो जाएगा, नहीं होगा तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा वंस यू ज्वाइन द कंपनी. प्रोसेस की चिंता मत करो, वाटरफॉल है क्या जाइल है. मेन इज योर प्रोजेक्ट. आपका प्रोजेक्ट क्या है? यू शुड हैव द वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट. कैसे मिलेगा? उसके लिए आप डॉक्यूमेंट रेफर कर सकते हो. यू कैन रेफर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स. बीआरडी मांग लो, अगर बीआरडी नहीं है तो कोई डॉक्यूमेंट पुराना मांगो. तो यू शुड बी वेरी प्रो इन गेटिंग द डिटेल ऑफ द प्रोजेक्ट. ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जब भी किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे, स्टार्टिंग में कुछ दिन टाइम मिलता है आपको, उस टाइम का यूज करो टू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट. आराम करने के लिए, इंस्टाग्राम चलाने के लिए यूज मत करो उस टाइम को. एक बार जब प्रोजेक्ट समझ जाएगा, किक ऑफ हो जाएगा, तो चीजें आसान होंगी, नहीं तो वो चीजें फ्रस्ट्रेट करेंगे फिर. ओके, सो प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आईटी. दे विल गिव टाइम टू यू एज वेल. किसी भी आईटी कंपनी में जाओगे, दे आर वेरी प्रोफेशनल. बहुत प्रोफेशनल होते हैं. अपार्ट एक दो लोगों की बात आई डोंट नो, जितने लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ है, जितने लोगों से हम लोग जो जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनका इंटरेक्शन हुआ है, मेरे कलीग्स हैं, ऑल आर वेरी प्रोफेशनल गाइस. अगर आपको काम असाइन किया जाएगा तो टाइम भी दिया जाएगा आपको. सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि प्रोजेक्ट नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन यू ज्वाइन एनी ऑफ द कंपनी, प्रोजेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज ले लेना. ठीक है. दिस इज द बेनिफिट ऑफ द डेली स्क्रम. ये कहाँ पे होती है? सो टाइम एंड लोकेशन ऑफ डेली स्क्रम शुड बी कॉन्स्टेंट. इन माई कंपनी वी आर हैविंग एवरी डे 10 AM की मीटिंग होती है. 10 to 10:30 मीटिंग. ऐसे आप, आई थिंक नैन्सी इज इन इंडसेंड, राइट? नैन्सी Yes, sir. Yes, sir. इंडसेंड में वन अकाउंट प्रिविलेज, फिर वन कार्ड, 10 lakhs म्यूचुअल फंड, 2 lakh लाइफ इंश्योरेंस, वन हेल्थ पॉलिसी. इतना सारे लीड है मेरे पास. आई क्लोज दिस. करेक्ट? या आप रोज सुबह खड़े होके बोलते हो नैन्सी, राइट? Yes, sir. है ना? मैं भी बोलता था नैन्सी. ओके. एक्चुअली आई वाज वन डे, आई नॉट, लेट मी टेल यू दिस. मैं किसको बताऊंगा? आपको नहीं, आप लोगों को नहीं बताऊंगा. तो वन डे आई वाज इन एक्सिस बैंक. ओके, ठीक है, एक्सिस बैंक में था मैं. एंड आई वाज टेलिंग द सेम थिंग टू द माय मैनेजर डेली बेसिस. सर आज ये करूंगा, 2 अकाउंट होंगे. पीपल हु आर नॉट इन बैंक ना, थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपको कोरिलेट करना. बट नैन्सी एंड सर्विस विल एबल टू कोरिलेट विद. सो एवरी डे आई वाज सेइंग द सेम थिंग. सर 2 अकाउंट, एक म्यूचुअल फंड 10 लाख का करूंगा सर, एक एलआई पॉलिसी कर दूंगा, एक हेल्थ इंश्योरेंस उठाऊंगा सर, अटैचमेंट ही बेचूंगा सर, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सब बेचूंगा सर. डेली 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 यही चीज बोल रहा हूँ मैं. किसी दिन होता है, किसी दिन नहीं होता है. जिस दिन हो गया, इन माई टाइम द लाइफ इंश्योरेंस वॉज मेन प्रोडक्ट. तो जिस दिन एलआई हो गई उस दिन हीरो, उसके नेक्स्ट डे फिर से जीरो. देन आई डिसाइडेड वन डे क्या यही करने के लिए पढ़ाई की? रोज खड़े हो जाओ और बोलो 2 अकाउंट. आई एम नॉट, गाइस, नॉट टेक इट अदरवाइज. हाँ, आई एम नो, आई रिस्पेक्ट ऑल द जॉब्स. मैं बहुत सारे जॉब की इज्जत करता हूँ क्योंकि जॉब से हमारा घर चलता है. आई रिस्पेक्ट बैंकिंग जॉब एज वेल, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. बट एट वन टाइम आई थॉट कि नहीं, आई कैन गेट सम स्किल सेट, और जो बैंकिंग है उसका नॉलेज का यूज करके, दैट इज कॉल्ड द डोमेन नॉलेज, उसको यूज करके कैन आई गो इनटू आईटी? क्या मैं आईटी में जा सकता हूँ? एलआई जीआई बेचने के अलावा क्या मेरा जीवन को मैं एज्यूम भी कर सकता हूँ कि मेरा मेरा रोज सेल्स टारगेट, आई वांट टू अचीव अ सेल्स टारगेट एवरी डे. हमें सेल्स टारगेट अचीव करना होता था एज अ पार्ट ऑफ आरएम. करेक्ट नैन्सी? सर्विस Yes, sir. रोज हमें बेचना है प्रोडक्ट. सर्विस का तो वन प्रोडक्ट है तो इट इज फाइन. आपका तो अच्छा है सर्विस.
बट फॉर द आरएम एक्चुअली रिलेशनशिप बट मैनेजर जो लेकिन तो भी सर डेली कुछ नंबर्स होते हैं या अटैचमेंट होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, क्रॉस सेल जिसको बोलते हैं हम। हाँ नंबर ऑफ देयर आर 7 नंबर ऑफ क्रॉस सेल्स जो उसको अपडेट करने रहते हैं और क्रॉस अपडेट लेने रहते हैं। क्रॉस सेल में क्या क्या आता है? क्रॉस सेल में सर मतलब रिपेमेंट अकाउंट, लाइक इन द लोन सेगमेंट रिपेमेंट अकाउंट है, और आपकी रिटेल लाइफ इंश्योरेंस की लीड्स हैं, और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस की लीड्स हैं, और आपके एफडीज है, कासा है। ये 7 पूरे प्रोडक्ट है उनके, ये कोर पहले प्रोडक्ट। नहीं था, पता है सर्वेश, व्हेन आई वाज इन बैंक ना, तो जो आप लोग होते थे ना, मतलब जो सिंगल पॉइंट वाले होते थे, वो राजा कहलाते थे। राजा मतलब आप लोग बहुत बड़े आदमी होते थे हमारे लिए। एक्चुअली सिंगल प्रोडक्ट है तो आपको हाँ। केवल इसी पे फोकस करना है। यू डोंट केयर अबाउट द अटैचमेंट। अटैचमेंट बोल दो, क्रॉस सेल बोल दो ना, वो नहीं होता था पहले। बट अभी सारे बैंकों में इन्होंने इसको कंपलसरी कर दिया है। दिस इज वेरी बैड एक्चुअली एक्चुअली। लाइबिलिटीज और असेट सेगमेंट जो बैंक है ना, वो मैच ही नहीं हो पा रहा है, बिकॉज इसकी वजह से ये इश्यूज एक सेगमेंट पे ज्यादा भारी हो रहे हैं। करेक्ट। दिस इज वेरी बैड थिंग अबाउट बैंकिंग इन सेल्स ऑल्सो। तो सर अभी आपको सेल्स ही नहीं, आप मतलब बैंकिंग में सेल्स हो, आप ऑपरेशन में हो, क्रेडिट में हो, या फिर एचआर में हो। एचआर में मैन पावर का इशू है, आपको हायरिंग के इश्यूज हैं, बिकॉज जिस हिसाब से लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को उनको हायर करने हैं, वो बैंकिंग के नाम से फियर में है। ऑपरेशन हो गए, क्रेडिट हो गए, उनके पास मैन पावर का इशू है, तो क्रेडिट में नंबर ऑफ यूटिलाइजेशन ज़्यादा है, और ऑपरेशन में भी वही इशू है। ऑपरेशन 80% ऑपरेशन है, 20% आपका सेल्स है, तो कहीं ना कहीं फियर है ही है वो। बहुत फियर है, इसलिए बोलता आप आईटी में आओ। आईटी में काम है, ऐसा नहीं मतलब एकदम जीवन ऐसा हो जाएगा, आओ बाहर हो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, वैसा नहीं होगा। इट विल बी वर्क, वर्क होगा वहां पे। मैं भी काम करता हूँ, 8 घंटे नहीं करता है, बट हाँ 4-5 घंटे हम लोग भी काम करते हैं एज अ बीए या पीएम। ठीक है। बट ये ऐसा नहीं होता, ऐसा सेल्स में है। इट इज वेरी बैड यार। इन रिटेल एंड लाइबिलिटी ना। एज पर माई, जितना मैंने खुद भी अभी देखा है, मतलब 5 ईयर ऑफ बैंकिंग करियर, जितना बैंकर एक काम करता है मतलब मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक ना, शायद किसी सेगमेंट में वो उतना काम नहीं है, एक्सक्लूडिंग एफएमसीजी जो फार्मास्यूटिकल लाइन है। करेक्ट। बिकॉज मैंने वो लाइन भी देखा हुआ है, उनका एक अलग प्रेशर है, उनका बिल्कुल अलग काइंड चीजें हैं। सेकेंड बैंकिंग आता है। एक और प्रोफाइल है जिससे मैं डरता था हमेशा से, नाम तो क्या, वो क्या बोलते हैं उसको, डॉक्टर के जो मिलने जाते हैं, एमआर। एमा। बहुत डरता हूँ मैं एमआर। उनसे। एमआर बहुत डर लगता है मेरे को सेम इस सेम प्रोफाइल से सेम भी। वही मैं बोला हूँ, वही वही प्रोफाइल मैंने बोला। एफएमसीजी में ही एमआर लाइन में आता है, वही इसलिए बस लाइन में वो सबसे गंदी जॉब होती है, मतलब उसका बिल्कुल अलग ही सीन है। अलग ही सीन है। आप पता है आपको वो लाइन भी सर्वेश, मैंने। ये जो एमआर होते हैं ना, इसको पलटा दो और हम्म। आरएम कर दो। इसको आप कर दो हम्म। रिटेल आरएम। जो मैं था, जो नैन्सी है, हम्म। सर हमारी हालत बहुत खराब है सर। अभी मैं नहीं बोल सकता कि मेरी है, मतलब व्हेन आई वाज मैंने एन देखा आरएम हुआ, ना, बिकॉज मैं। हम्म। आरएम वाज वेरी बैड। सर बहुत ज्यादा खराब हालत आरएम की थी। 2016 से हम्म। 18 तक ठीक था। बिकॉज जब मैं डेली सिविल मॉर्निंग हडल में नंबर पूछता हूँ या कुछ पूछता हूँ ना, मैं खुद मतलब बंदों को देखता हूँ या फिर अपने रिपोर्टीज को देखता हूँ ना, तो मेरे को कभी कभी होता है कि नहीं यार, मत पूछो, छोड़ दो, जाने दो जॉब भाई। करेक्ट। तो तो दैट्स वो व्हाई सारी चीजें रहती है। बहुत बहुत मुश्किल है आरएम की जॉब। इज वेरी, बहुत बहुत दर्द होता है एक्चुअली जॉब को करने में। अब मुझे कोई बोले ना कि आरएम की जॉब कर लो, मैं आपको एक्स अमाउंट ऑफ मनी दूंगा, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत टफ जॉब लगी मुझे आरएम की। ओके। हम्म। तो एमआर और आरएम ना देखो तो सर्विस से, और इस दो दर्द को वही समझ सकता है जिससे होके गुजरा है। हम्म। ओके। बहुत दर्द है इसमें। नैन्सी, एम आई राइट? यस सर, ट्रू। बहुत दर्द है। आपने कितने साल काम किया नैन्सी आरएम में? सर 2 साल होने अरे वाले हैं। आपने कुछ नहीं देखा नैन्सी। बट लेकिन तो भी कासा सेगमेंट सर बहुत खतरनाक है, और मतलब बहुत सर कुछ खतरनाक मोस्टली नहीं मतलब। तो नहीं देखा, पर ऐसा कह सकते हैं कि मैंने करियर ही मेरा बैंकिंग से स्टार्ट किया। बट लेकिन मैं थोड़ा बहुत भी डिमोटिवेशन के अगर लिए। मुझे प्रायर एक्सपीरियंस होता सेल्स का या कुछ, तो हाँ मुझे बहुत सहूलियत मिलती, बट
RM चैनल में आपको हर प्रोडक्ट पे इक्वली अपना फोकस देना है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली LI क्लोजर, जिसके लिए वो अगर उनका बस चले तो वो आपसे खड़े पे रिजिग्नेशन भी रखवा लेते हैं। करेक्ट। और एक चीज ये भी है, मतलब अभी जितनी बैंकिंग इंडस्ट्री है, जितना मैंने देखा है ना, मतलब मेरे लिए ना वन ऑफ द टफेस्ट थिंग है इंडसइंड बैंक, बिकॉज उसमें जॉब करना ना, इंडसइंड एक लीजेंड बैंक है सर, मैं सर अपना स्टोरी बता नहीं मेरा में सकता। इंडसइंड बैंक हाँ करेंटली। हाँ, करेक्ट। इंडसइंड में एक लीजेंड, मैं अपना स्टोरी बता नहीं सकता इंडसइंड की, क्योंकि वो गलत हो जाएगा। हम्म, तब से अलग है मैंने वो। एक मीटिंग अटेंड की हुई है इंडसइंड की। मतलब किसी काम की वजह से मैं गया हुआ था। मेरा एक्स बॉस था, वो छोड़ के उसमें इंडसइंड में ही गया हुआ था, पुणे ब्रांच में ही। मोस्टली उन्होंने 3 मंथ ही काम किया होगा, एक्सेस छोड़ के गए थे। ये ड्यूरेशन है सर, ये हाँ ड्यूरेशन जो है ना 3 मंथ जो है, हाँ। बिलीव मी, ये कम से कम 40 से 50% ऑफ न्यू एम्प्लॉयज है, ये 3 महीना हम्म। छोड़ देते हैं लोग, वहां पे नहीं करते। तो वहाँ का मैक्सिमम विंटेज ही 1 ईयर है। हाँ, सही बात है। 1 साल बाद तो बहुत पुराना हो गया वहाँ पे बहुत पुराना एम्प्लॉय। हो गया। अब यहाँ दिक्कत क्या है इंडसेंट की ना, वो पैसा कुछ भी उठ पटांग दे देगा आपको, उठ पटांग पैसा। आप 6 लाख पे 12 लाख मांग लो, 12 लाख दे देगा आपको। कुछ भी पैसा देता, कुछ भी पैसा देता है इंडसेंट। इंडसेंट मतलब कुछ, इंडसेंट इज वेरी बैड बैंक यार। रिकॉर्डिंग तो रिकॉर्डिंग जाने दो, क्या हो गया। इट्स अ वेरी बैड बैंक टू वर्क विद। बट हाँ, एक और चीज है नैन्सी, कुछ भी है, अभी रिजाइन नहीं डालना है। नहीं सर, अभी तो मैं वैसे भी नहीं डालने वाली हूँ एज हाँ, ऑफ नाउ। दिस इज तो नॉट ओनली फॉर नहीं, नैन्सी, दिस इज फॉर। एक बार रूट्स बन गए ना, तो वो चीज छोड़ना मतलब मेरे हिसाब से इजी भी नहीं है, और एक मतलब गलत चीज होगी। हाँ, नैन्सी सर्वाइवल सर, नहीं होता है उस मोड पे, आदमी छोड़ता है तो एक बार समझ में आता है। अगर अब रूट्स बन गए हैं ना, तो अब छोड़ के कोई फायदा नहीं है, अब उसको यूज करने का टाइम है। रूट्स बन गया मतलब मैं समझा सर्विस। सर मतलब सर्वाइवल जो एक अपना टाइम होता है ना, टाइम बीइंग द रिलेशनशिप, मीन लाइक वी आर द रिलेशनशिप मैनेजर। तो जो एक इसमें टाइम बिल्डिंग रिलेशन हो जाते हैं, एज अ कस्टमर वाइज ऑल्सो, एज अ अच्छा, कंपनी समझ वाइज गया, ऑल्सो। अच्छा। हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, और हाउ टू मैनेज द थिंग एंड रिक्वायरमेंट। नहीं, अभी तो नैन्सी आप को ज्यादा टाइम सर्वाइवल हुआ कर नहीं जाओगे। है, अभी नैन्सी को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। उसने 2 साल हुआ स्टार्टिंग ना की। उन्होंने। नहीं नहीं नहीं, नहीं दो नहीं, साल नहीं हुआ है। 2 साल मैं दूसरे पहले एक्सिस में एक्सेस में थी, थे। एक्सिस के बाद मैं इसमें इंडसइंड में मैंने स्विच किया। ओके। 2 साल इंडसन निकाला मतलब, मैं तो उसको कौन सा वर्ड दूंगा, आई डोंट नो यार। आरएम की प्रोफाइल, अच्छा एक प्रोफाइल बहुत अच्छी है इंडसेंट की, ट्राई करो अगर कहीं से जुगाड़ हो जाए। रिटेल फॉरेक्स, रिटेल जी। फॉरेक्स इन इंडसेंट, बहुत जबरदस्त प्रोफाइल है ये। आराम से गाड़ी चलती है यहाँ पे, इवन इंसेंटिव बहुत अच्छे हैं। ट्राई करो अगर कोई एक जुगाड़ हो जाए एनसी, रिटेल हम्म। फॉरेक्स मेरे को, मेरा भी। यू आर इन विच लोकेशन? इंदौर। इंदौर में, दिल्ली में आई एम हैविंग सम कनेक्शन इंडसेंड के, जो रिटेल फॉरेक्स का बहुत प्यारा डिपार्टमेंट है ये। बहुत पैसे भी हैं और काम भी आराम का है इंडसेंड में। चल एक ही डिपार्टमेंट है ये, बाकी सब खराब है। चल लेट्स कंटिन्यू गाइस, व्हाट रिक्वेस्ट आई एम हैविंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू, नैन्सी, सर्वेश, सुभाष एंड वेंकट, डू नॉट पुट योर रेजिग्नेशन बेस्ड ऑन दिस ट्रेनिंग। अंडरस्टूड वेंकट? Yes, sir. यस सर। Yes, yes. सर्वेश यू ऑल्सो? यस। यस। हाँ, ये ट्रेनिंग से हमें जॉब लेनी है, लाइफ को कठिन नहीं बनाना है। एक बार जब अपने हाथ में एक्सपीरियंस रहता है, जॉब रहती है, तो चीज़ों को ढूंढना आसान रहता है। एक बार आप मेरा मॉक क्लियर कर लो, एक बार मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जो अभी नहीं डिस्क्लोज कर सकता हूँ, दैट आई टेल यू वंस यू कंप्लीट द कोड। उस कैलकुलेशन में यू कैन टेक द कैलकुलेटेड रिस्क, वो मैं आपको बताऊंगा कब आप ले सकते हो, पर वो अभी नहीं। तो यू 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 डू नॉट डेयर टू पुट द रेजिग्नेशन, मैं हेल्प नहीं करूंगा फिर प्लेसमेंट में, मैं साफ बता देता हूँ अभी। यू डू नॉट नीड टू रिजाइन, आपको किसी रिजाइन नहीं डालना है, प्लीज रिजाइन मत डालिए, क्योंकि एक प्रोसेस होता है काम करने का, सीखने का और जॉब लेने का। विल फॉलो दैट प्रोसेस ओनली। ठीक है। सो इन द डेली स्टैंड अप मीटिंग वी नीड टू डिसाइड कि डेली स्टैंड अप बात कहाँ से कहाँ पहुंच गई। मुझे अपना डेली स्टैंड अप याद आ गया एक्सिस बैंक का, इसलिए मैंने बात बोल दी गई, सॉरी। बट अब समझो, बहुत जॉब कठिन है लाइफ में, इसीलिए आईटी में आ जाओ, लाइफ ठीक ठाक है। बहुत अच्छी लाइफ, बहुत अच्छी नहीं, लाइफ लाइफ अच्छी है यार, ठीक तो है, अच्छी लाइफ है, इट्स गुड इन आईटी।
सर्वाइवल भी अच्छा है। सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? वी आर हैविंग रिस्पेक्ट। आप काम करोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, अच्छी रिस्पेक्ट मिलेगी आपको। पोलाइट रहो, बीए बन करके गाड़ी चलती रहती है। ओके। सो टाइम एंड लोकेशन ऑफ डेली स्क्रम मीटिंग विल बी कांस्टेंट, और फिक्स रहती है आपकी। या तो मीटिंग ऑफिस में होगी, या तो यूल हैव मीटिंग्स ऑन योर एक पर्टिकुलर रूम में होगी। मैनेजर कैन अटेंड द डेली स्क्रम मीटिंग, हाउ वेयर द टीम मेंबर अलाउड टू स्पीक। यू कैन इग्नोर दिस पॉइंट बिकॉज एवरीबडी इन दिस मीटिंग विल अलाउ टू स्पीक। सब लोग बात करते हैं, सब लोग एक दूसरे से चैलेंजेस रखते हैं, सब लोग अपना टास्क बताते हैं स्क्रम मास्टर को, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। इट इज अ नोट डिजाइन सेशन। ये डिजाइन सेशन नहीं होता है कि यार इसी टॉपिक पे बात होगी, नो। इट इज अ सेशन वेयर यू आर गोइंग टू टेल कि मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, एंड व्हाट चैलेंज आई फेस्ड, प्रोजेक्ट नॉलेज एंड ऑल, ये सब चीज बातें होती है। बट मोस्टली यहाँ पे इट इज काइंड ऑफ स्टेटस कॉल। ये जो होता है ना, ये मोस्टली स्टेटस कॉल होता है आपका। डेली स्टैंड अप मीटिंग नथिंग बट it is your status call. Any discussion needed other than the status provided in the daily scrum lead to the follow-up meeting. अगर आपका डेली स्टैंड अप कॉल में कोई और भी टॉपिक आ जाता है, जैसे आपका डिजाइन डिस्कशन है, रिक्वायरमेंट डिस्कशन है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, सो दैट विल कम एज द पार्ट ऑफ योर फॉलोअप मीटिंग। वो आपके स्टेटस मीटिंग में नहीं होगा। स्टेटस मीटिंग में जस्ट आपने क्या किया है, क्या नहीं किया, वो आप बताओगे, चैलेंजेस को हाईलाइट करोगे। इट विल नॉट लीड टू द डिफरेंट डिस्कशन। वो डिफरेंट डिस्कशन आपका फॉलोअप मीटिंग में जाता है। ओके। सो वी हैव लर्न टुडे टू थिंग्स गाइस। क्या दो चीज हमने आज पढ़ी? पहली चीज हमने देखी, व्हाट इज स्प्रिंट प्लानिंग। इन स्प्रिंट प्लानिंग वी नीड टू डिसाइड व्हाट ऑल फंक्शनैलिटी वी नीड टू बिल्ड एंड हाउ वी वांट टू बिल्ड दैट फंक्शनैलिटी। इनपुट क्या रहेगा? प्रोडक्ट बैकलॉग। हम लोग प्रोडक्ट बैकलॉग जो 16 रिक्वायरमेंट्स है, वहां से रिक्वायरमेंट उठा करके स्प्रिंट बैकलॉग में ले जाएंगे और स्प्रिंट को चला देंगे। तो स्प्रिंट बैकलॉग में कौन से आइटम जाएंगे, दैट विल बी डिसाइडेड एज अ पार्ट ऑफ योर स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। Second is your daily stand-up meeting. This daily stand-up meeting will be have the 15 to 30 minutes की meeting होगी. This meeting will be led by the Scrum Master. Scrum Master will ask the 3 question. कौन कौन से क्वेश्चंस पूछता है सुभाष? सर स्क्रम सेरेमनी में ये स्क्रम मास्टर कौन कौन से सवाल पूछते हैं? जी सर। What have you completed since the last scrum meeting? Very good. And what got you in your way of completing this work? Very good. And what will you do between now and क्या the बात next है? scrum meeting? Where is my reaction? Very good. Please clap for Subhas. He has given the absolutely right answer. बहुत बढ़िया सुभाष। Very good dear. मेरा गया नहीं क्या? ये गया। वेरी गुड, वेरी गुड सुभाष, बहुत अच्छा। सो इन द स्प्रिंट प्लानिंग डेली स्टैंड अप मीटिंग, स्क्रम मास्टर इज गोइंग टू आस्क 3 क्वेश्चन, जो सुभाष ने बताए कि आपने कल से लेकर आज तक क्या किया था, जब आप काम कर रहे थे, कोई चैलेंज आपको आए क्या, और तीसरा क्वेश्चन होता है कि आपने कल क्या करने वाले हो। उसके बाद डेली स्टैंड अप मीटिंग इज द काइंड ऑफ स्टेटस मीटिंग। इट विल, अगर कोई इसके अलावा और भी कोई डिस्कशन है, दैट विल गो एज अ पार्ट ऑफ योर फॉलो अप मीटिंग। So these 2 things we have understood as a part of our Scrum ceremonies. So there are 4 Scrum ceremonies: sprint planning, daily stand-up, sprint review, sprint retrospective. जो हमने आज 2 चीजें पढ़ी हैं, वो पहला है sprint planning और दूसरा होता है sprint daily stand-up. Guys, ये 2 Scrum ceremonies आपको समझी? नैन्सी, दोनों समझा? Yes, sir. सर्वेश, बोथ? यस यस सर। ठीक है। sprint review, सॉरी सुभाष, Yes, sir. Yes, sir. वेंकट, both ceremonies, sprint plan, daily stand-up, वेंकट? यस अश्विनी बट हमको ना हाँ। ये ग्रो को ना एक्चुअली डेली स्टैंड अप ये आंसर दिया है। ये क्या हम लोग ये दे सकते हैं? क्या क्या फिर से बोला? एक चैट में एक आंसर एक को भेजा, एक बार देखना। ओके। इसमें तो ये भेजा आपने, क्या है, तालियां है इसमें तो, सिटी पे जा रहे हैं सर्विस, पार्टी मूड में। कहाँ पे भेजा है आपने? व्हाट्सएप पे क्या नहीं सर्विस? नहीं, इसी में जूम चैट में। एक मिनट आपने में। ओके। email भेजा सर ना? व्हाट डिड आई डू यस्टरडे, व्हाट एनी ब्लॉग। एक मिनट में सिलेक्ट करता हूँ, पूरा दिख नहीं रहा है मुझे।
So एक मिनट, हाँ, just copy. This one you're talking about, right? एक्चुअली हम ना, आप जब पढ़ा रहा था, हम इधर नोट्स भी प्रिपेयर कर रहा था, हम ना हाँ हाँ. ग्रुप ग्रुप को और भी उसको क्रिंज कर रहा था, और भी उसको क्या क्या आंसर हो सकते हैं। Okay. एक मिनट, just note. Let me open एक्चुअली this. ये दिया है, ये 15 to 30 minutes daily think where each team member answer what did you yesterday, what did I yesterday, what will you. एक मिनट, I'm just copying paste this. This is what file. What did I do yesterday? What will I do today? Any blogger? हाँ, correct है. These three questions. Venkat, हाँ, हम लोग these are the three questions. बराबर, करेक्ट। Right? What have you completed since the last Scrum meeting? What got in your way of completing this work? And what will you do between now and the next Scrum meeting, Venkat? Okay. Understood? यस यस, नहीं एक्चुअली हम लोग को पूछता है ना इंटरव्यू क्वेश्चन में, व्हाट इज द डेली स्टैंड अप, तो ये हाँ, daily stand-up meeting में you will say it is a daily meeting which is a 15 to 20 minutes of. अच्छा guys, I'm telling you the definition जो आपको इंटरव्यू में बोलना है. What is the daily stand-up? The daily stand-up is a meeting which will led by the Scrum Master. It is a daily meeting for 15 to 30 minutes. In this meeting, Scrum Master will ask the three questions. What have you completed since the last meeting? What got in your way of completing this work? And what will you do from now in the next Scrum meeting? So this is kind of a status meeting where Scrum Master want to understand where we are in the project. इतना बोल दो कि काम हो जाएगा. Understood, Venkat? यस यस सर। Okay. अच्छा Okay, सर, guys. हाँ, वन बोलिए. वन कैन आई हाँ, आस्क समथिंग? please ask, सर, sir. ये जो सर ये स्क्रम मीटिंग है, हम्म, in case there is no scrum master, then who will take the scrum meeting, like business analysis. what's the process? Business analysis. BA. Business BA लेता है, okay. Like then BA or scrum master will take the daily stand up. हाँ, आप बोला कि in the interview you will say, sir, in my team I was having the Scrum Master. He was Yes, sir. taking the this meeting, Scrum meeting, daily stand-up. अगर क्वेश्चन Okay. मतलब नहीं है तो कौन लेगा सर? I used to take that meeting in Got research. it. ठीक sir. Okay, so thank you so much all for joining Thank today's you. session. Have a great night ahead. Good night. Bye bye. Thank you Good sir. Good night. night. Good night everyone. Thank you. Bye.